evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Please write yes in the comment box if I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Please write yes in the comment box so that I can start. Good evening to all. I hope I am audible to you. Please come fast, everybody. Everybody, please join fast. Everybody, please join fast quickly. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Yes, okay. So we are going to see the elimination part today. So today we are going to see the remaining part, and that is nothing but the elimination part. Elimination, and I will start the dynamics also. This is a very important part for your upcoming GPAT Niper Drug Inspector and Pharmacist exam, right? So we have seen the general pharmacology. In that we have seen the introduction part. After that we have seen the kinetics. Okay, kinetics. After that we have seen the absorption part. We have seen the distribution. We have seen the elimination. We have seen the metabolism. Yesterday's in a previous session we have seen the metabolism. So right, we have seen this. Okay, now next part is nothing but the drug elimination. Next part is nothing but the drug elimination. So drug elimination. So in the kinetics you have four processes known as the pharmacokinetics. So what body does with the drug is nothing but the pharmacokinetics. In that you have drug absorption, drug distribution, drug metabolism, and drug elimination. So out of that we have seen the absorption process in the detail, distribution process in the detail, metabolism process in the detail, and today we will see the elimination process. So elimination process. So what happens when you take a drug, when you take any kind of drug, what happens? So drug is absorbed, drug will be distributed in the various body compartments. After that drug will be metabolized in the body. Okay, so drug will show its action and then drug will be metabolized in the body. Drug will be rendered inactive in the body, and now it's the time for drug removal. So what is elimination? Removal of drug from your body is known as the elimination process. So it is a part of your kinetics. So ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination, known as a pharmacokinetics, and out of that last three process, that is the distribution, metabolism, and elimination. So last three process they are known as a together they are known as a drug deposition process. तो kinetics में deposition भी आता है, drug deposition में क्या आता है? So distribution, metabolism, and elimination, they are together known as a drug deposition process. Okay, so we have seen up to the metabolism. Now next is the elimination. So what is elimination? So elimination is nothing but the removal of drug or its metabolite. Removal of drug or its metabolite. Some drugs are removed from body unchanged. कुछ ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होते बॉडी में, and they are excreted unchanged. So elimination is nothing but the removal of metabolites of drug from body, drug or its metabolite. So if drug is not metabolized in the body, so it will be removed unchanged, and if it is
metabolized, then metabolites of drug will be removed. तो ड्रग आइदर एज सच रिमूव हो सकता है बॉडी में से, या फिर उसके मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो मेटाबोलाइट बने हैं वो रिमूव हो जाएंगे. सो दैट इज नोन एज एलिमिनेशन. सो एलिमिनेशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ मेटाबोलाइट्स ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी मेनली बाय renal excretion. मेनली बाय renal excretion. renal excretion मतलब थ्रू ए किडनी. So I have told you for absorption you need a lipid soluble drug, and for elimination you need a water soluble drug, and the process of making lipid soluble drug into water soluble drug is nothing but the metabolism. So there is a role of metabolism. So metabolism renders lipid soluble drug into water soluble drug that can be removed easily from body. Okay? So main principal organ for elimination, सबसे ज्यादा elimination कहाँ से होता है? Kidney. So main principal organ for elimination is kidney, but other organs are also responsible for the excretion. Not only kidney, but other organs also has a capacity to excrete the drug. तो सबसे ज़्यादा excretion kidney से होता है, लेकिन kidney के बाद में so lungs has a capacity to eliminate, biliary system has a capacity to eliminate, intestine, salivary gland, sweat gland. So they are also known as the organ for elimination. So most of the elimination takes place by urine, via urine, through a kidney. Most of the drug excretion takes place through a kidney via urine, but other organs also has a capacity to excrete the drug. So lungs are having capacity, biliary system मतलब gallbladder, intestine is having system. Some drug are excreted in the lungs. For example, gaseous anesthetics, alcohol है ना. जब आप अल्कोहल अगर कोई लेता है अल्कोहल, तो उसके ब्रीथ से समझ में आता है, ब्रीथ टेस्ट इसके लिए होता है, बिकॉज अल्कोहल इज एक्सक्रीटेड इन द ब्रीदिंग, राइट. सो लंग्स, बाइलियरी सिस्टम, इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड आर आल्सो नोन एज नॉन renal excretion. So excretion of drug through a kidney, excretion of drug through a urinary system known as the renal excretion of drug, and excretion of drug through lungs, biliary system or salivary glands or sweat glands or intestine known as a non-renal excretion. non-renal excretion, ठीक है. तो दो होता है, renal excretion and non-renal excretion, right. Now in the kidney the process of urine formation has a 3 steps. तो किडनी में process of urine formation होता है सबसे पहले. तो urine, how urine is formed, so there are 3 processes. first होता है आपका glomerular filtration. तो पहला आता है glomerular filtration. We are going to see that in detail when we will see the urinary system. है ना, filtration पहले, glomerular filtration, then selective reabsorption, and then active secretion. There are 3 processes for the urine formation. First one is known as the glomerular filtration. Second one is known as the selective reabsorption, and third one is nothing but the active secretion. मतलब क्या होता है कि everything is filtered from the blood in the kidney. तो glomerulus जो होता है किडनी में, जो glomerulus होता है, so everything is filtered in the glomerulus known as a glomerular filtration. Okay, and after that some whatever is required for the body, जैसे nutrition, glucose, vitamins, and vitamins, glucose, essential elements, salts, they are reabsorbed through a kidney. That is known as a selective reabsorption. And whatever is not required, that is excreted, that is secreted actually in the tubules, known as active secretion. तो यहाँ पे so glomerular filtration, so that doesn't depends on the lipid solubility of drug. तो filtration जो है ना, glomerular filtration does not depend on the lipid solubility of drug. यहाँ पे याद रखना है, glomerular filtration does not depend on the lipid solubility of drug. जैसे absorption के लिए क्या है कि absorption lipid soluble drug अगर है तो ज़्यादा absorption होगा, but glomerular filtration जो होता है उसके लिए lipid solubility is not a criteria. So everything will be filtered except blood cells and plasma proteins. So everything from blood is filtered in the kidney except blood cells and plasma protein, right. So regardless its chemical nature, it doesn't matter water soluble है, water insoluble है, but okay, so for filtration no need of water lipid solubility or water solubility.
बट फॉर सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, सो लिपिड सोल्यूबल अगर कंपाउंड है तो सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब होगा, so selective reabsorption depends on the lipid solubility, right? And that's why we need a water soluble molecule, right? तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2018 में. तो व्हाट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ ब्लड with drug that is filtered by glomerulus. So amount of water which is filtered by glomerulus per unit time. So amount of water filtered by glomerulus per unit time known as a filtration rate. Now glomerular filtration rate is closely related with the creatinine and there is one more compound known as inulin. देखो यहाँ पे दो कंपाउंड होता है, एक होता है इनुलिन and creatine. So there are two compounds, creatine and inulin. So they are also filtered through glomerulus. So they are totally filtered by glomerulus. That's why so clearance of creatinine from plasma से creatinine कितना रिमूव हो चुका है और clearance of inulin from plasma, inulin clear कितना हुआ है, so that is directly related with the glomerular filtration rate. क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. So creatinine clearance is closely related with the glomerular filtration rate or inulin clearance through a blood is clearly related with the glomerular filtration rate. And that's why these two compounds are used to measure the glomerular filtration rate. ये दो कंपाउंड जो है GFR के लिए यूज करते हैं. Am I audible to you? Am I audible to you? If yes, write down yes in the comment box. है ना? If I am audible, please write yes in the comment box. So these two compounds they are used to measure the glomerular filtration rate. Remember, very important question आ चुका है इसके ऊपर. So these two compounds, creatinine is a nothing but it is a metabolic product of metabolism of your purines and pyrimidines. And inulin क्या होता है? Inulin, remember inulin is known as it is a polysaccharide. Inulin क्या है? It is a polysaccharide of fructose. Remember इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको. इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज. तो फ्रुक्टोज का पॉलीसेकेराइड जो है इसको अपन बोलेंगे इनुलिन. तो इट इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज एंड क्रिएटिनिन इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स. क्रिएटिनिन इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है क्रिएटिनिन. तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड इनुलिन क्लियरेंस दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो जीएफआर मेजर करने के लिए क्या है? To measure the GFR, creatinine and inulin. Creatinine and inulin, these are two used. Now normal GFR rate क्या होता है? 20 to 30 ml per minute. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. What is the normal GFR? Normal glomerular filtration rate. तो GFR normal 20 to 30 ml per minute होता है, right? And ये सबके ऊपर क्वेश्चन आता है. मतलब ये जस्ट 3 लाइन है यहाँ पे, 3 लाइन के अंदर ही 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल कंटेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट कंटेंट है. ठीक है. नेक्स्ट आता है नाउ नाउ यू हैव अ ड्रग इन अ बॉडी. नाउ बॉडी हैज डिफरेंट ऑर्गन्स हैज अ कैपेसिटी टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम बॉडी. नाउ द सम ऑफ द टोटल इंडिविजुअल क्लियरेंस, मतलब क्या आपने यहाँ पे देखा है कि लंग्स हैज अ कैपेसिटी टू रिमूव, लंग्स आल्सो हैज अ कैपेसिटी टू एक्सक्रीट द ड्रग. Biliary system has a capacity, intestine has a capacity, salivary gland, sweat gland has a capacity to remove the drug. So suppose 80% ड्रग आपका किडनी से रिमूव होगा, 80% ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू ए यूरिन एंड 10% ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू ए लंग्स, है ना. 5% थ्रू ए biliary system, 2.5% intestine, 2.5% salivary gland. Now so clearance of these all, क्लियरेंस मतलब क्या है? क्लियरेंस मीन्स रिमूवल. सो क्लियरेंस मीन्स रिमूवल. तो जैसे प्लाज्मा क्लियरेंस मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब क्या? कितना रिमूव हो चुका है, राइट. सो द सम ऑफ इंडिविजुअल क्लियरेंस बाय ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन इज नोन एज अ टोटल बॉडी क्लियरेंस. तो टोटल बॉडी क्लियरेंस क्या होता है? टोटल बॉडी क्लियरेंस इज नथिंग बट द रिमूवल और एलिमिनेशन of a drug from different
different eliminating organ. So some मतलब addition. So addition of individual clearance, say clearance by kidney, clearance by liver, clearance by lungs. So addition of this individual clearance, the addition of individual clearance by all eliminating organ is known as a total body clearance or total systemic clearance. तो ये डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है क्लियरेंस का डेफिनेशन. तो क्लियरेंस मीन्स व्हाट है ना, क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लियरेंस. इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ए ड्रग व्हिच इज बीइंग क्लियर्ड और कंप्लीटली रिमूव्ड. ओके, सो देखो क्लियरेंस मतलब क्या होता है कि हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, जैसे आपका ब्लड है, ब्लड में क्या है, कितना होता है ब्लड, अराउंड 6 लीटर ऑफ ब्लड इज देयर. 6 लीटर ब्लड होता है ना, से फॉर एग्जांपल ब्लड कितना होता है 6 लीटर. ब्लड इज नथिंग बट द 6 लीटर. तो ब्लड क्या है, वॉल्यूम है. सो इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ए ड्रग. ड्रग कहाँ पे, ब्लड में. एज्यूम करो. तो जस्ट एज्यूम ए ड्रग इज इन अ ब्लड. सो 6 लीटर में ब्लड है आपका. तो क्लियरेंस मीन्स व्हाट. सो इट इज अ हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग ए ड्रग फ्रॉम व्हिच ड्रग हैज बीन रिमूव्ड. सो इसमें से 6 लीटर में से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग रिमूव किया है, ड्रग हैज बीन रिमूव्ड और क्लियर्ड कंप्लीटली in a specific time. That is known as a clearance. So clearance is nothing but the hypothetical volume of body fluid containing a drug from which the drug is being removed or being cleared in a specified time, known as a clearance. Now clearance is given in the ml per minute. Okay, ml per minute. आपका clearance कैसे दिखाते हैं अपन, ml per minute. So expressed as ml per minute and it is a constant for any given plasma drug concentration. क्लियरेंस इज अ कांस्टेंट फॉर एनी गिवन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. ये चीज याद रखो आप, राइट. नाउ रीनल क्लियरेंस मतलब क्या है. सो क्लियरेंस ये बस सिर्फ वहाँ पे किडनी ऐड करना है आपको, राइट. तो क्लियरेंस इज एक्सप्रेस्ड एज ml पर मिनट एंड इट इज अ कांस्टेंट एट अ गिवन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, राइट. देखो क्लियरेंस का डेफिनेशन, फॉर्मूला क्या है क्लियरेंस का. तो एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है क्लियरेंस का फॉर्मूला है, राइट. क्वेश्चन कभी कभी आता है आपको, दे विल गिव यू एलिमिनेशन रेट, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द क्लियरेंस, और दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, दे विल गिव यू क्लियरेंस एंड एलिमिनेशन रेट. ठीक है, आपको ये तीनों में से 2 चीज देंगे और एक चीज पूछेंगे, ठीक है. जैसे क्लियरेंस इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. अगर आपको पूछा है कि आपको एलिमिनेशन रेट कैलकुलेट करना है, आपको क्लियरेंस दिया है, आपको प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो एलिमिनेशन रेट इज इक्वल टू क्या होगा. तो एलिमिनेशन रेट पूछा है तो ये इधर जाएगा ना, को मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्लियरेंस इनटू प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट, ठीक है, राइट. जैसे प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो क्या होगा, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पूछा है तो ये एलिमिनेशन रेट यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, क्लियरेंस डिवाइड बाय एलिमिनेशन रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे, राइट. तो इट कैन बी मॉडिफाइड. नाउ रीनल क्लियरेंस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा दैट इज कंप्लीटली क्लियर्ड एंड कैन बी चेंज अवे. और रीनल क्लियरेंस इज नथिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड और प्लाज्मा विच इज कंप्लीटली क्लियर्ड फ्रॉम द ड्रग बाय द किडनी पर यूनिट टाइम. तो रीनल क्लियरेंस इज इक्वल टू यूरिन रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और दैट इज रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन divided by plasma drug concentration. That is a clearance. I hope I am audible to you. सबको audible है ना? I hope I am audible to you and है ना, सभी लोग ज्वाइन करो, सेशन इंपॉर्टेंट है, लेक्चर मिस मत करते रहो, है ना. तो इंपॉर्टेंट है. विल सी द डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन अभी, है ना. ये जो लेक्चर्स है इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, हर एक लेक्चर आपको करना है, मिस नहीं करना है ना. डोंट मिस इट, राइट. तो चलो देखो नेक्स्ट क्या होता है, एक्सक्रीशन पाथवेज, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीटेड. सो एक्सक्रीशन पाथवेज, यूरिन मतलब यूरिन में से एक्सक्रीट होता है, लेकिन कैसे होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन द यूरिन, राइट. देन बाइल में कौन से एक्सक्रीट होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ ड्रग आल्सो. तो यूरिन, तो एक्सक्रीटरी रूट ऑफ एक्सक्रीशन, देखो यहाँ पे रूट ऑफ एक्सक्रीशन है, यहाँ पे मैकेनिज्म है और यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ ड्रग है, या फिर कौन से कमेंट है ना.
सबसे क्या है, सो यूरिन, फर्स्ट इज यूरिन, सो 90% ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, याद रखना है 90% ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे 90% ड्रग्स दे आर एलिमिनेटेड वाया यूरिन। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेशन ओवर हियर, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव सिक्रेशन, देन एक्टिव और पैसिव रीएब्सॉर्प्शन, है ना। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म ही होता है ना कि पहले तो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन में क्या आता है, पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, देन सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, है ना, देन सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन एंड देन, है ना, एक्टिव सिक्रेशन। तो ये सब मैकेनिज्म रहेंगे इसके लिए, है ना, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन, एक्टिव, पैसिव, रीएब्सॉर्प्शन, राइट। व्हाट टाइप ऑफ ड्रग विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यहाँ पे यूरिन में कौन से ड्रग जाएंगे, तो फ्री ड्रग ओनली, रिमेंबर फ्री ड्रग, यहाँ पे लिखा है ना फ्री ड्रग, क्यों लिखा है फ्री, बिकॉज इफ ड्रग इज अ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सक्रीशन, सो ओनली फ्री ड्रग विल बी एक्सक्रीटेड। तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सोल्यूबल ड्रग विल बी एक्सक्रीटेड, अनचेंज्ड ड्रग, ओके, मेटाबोलाइट्स एंड देयर कॉन्जुगेट्स हैविंग मोलिकुलर वेट लेस देन 500 डेल्टन, तो जिसका मोलिकुलर वेट 500 डेल्टन है, ऐसे फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग हाइड्रोफिलिक है, अनचेंज्ड भी हो सकता है, मेटाबोलाइट भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेट भी हो सकते हैं, वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स, वाटर सोल्यूबल कॉन्जुगेट, सो दे आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। नेक्स्ट होता है बाइल, सो बाइल सॉल्ट, ओके, बाइल सॉल्ट मालूम है आपको, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टाउरोकोलेट, तो इन द बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। आपका जो फैट खाते हो आप, लिपिड्स खाते हो ना, ऑयल लेते हो, तो सबके लिए एब्सॉर्प्शन कहाँ से होता है, उसका फैट सोल्यूबल विटामिन्स, लिपिड्स, है ना, ऑल द फैटी एसिड दे आर बीइंग एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बाइल, तो इट इज आल्सो ए रूट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो बाइल में क्या होता है, एक्टिव सिक्रेशन, देयर इज एक्टिव सिक्रेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन द बाइल, है ना। तो यहाँ पे कौन से ड्रग एक्सक्रीट होंगे भाई, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ड्रग, कौन से हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर सोल्यूबल, अनचेंज ड्रग, है ना, मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म जिसका वो नहीं, वो मेटाबोलाइट्स एंड कॉन्जुगेट्स ऑफ, है ना, कॉन्जुगेट होता है ना, जैसे ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेट्स हैविंग मोलिकुलर वेट लेस देन 500, मोलिकुलर वेट इसका 500 से कम है, वो काइंड सभी ड्रग क्या होंगे, बाइल में एक्सक्रीट होंगे। नाउ एक्सक्रीशन इन द बाइल और एक्सक्रीशन इन द यूरिन, so that depends on the physical chemical properties of drug, right? Next होता है lungs में कौन से डिक्रीज हो गए, so what is the mechanism for the excretion in the lungs, तो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन होता है, राइट। सपोज एक कोई अगर ड्रिंक करता है ना, मतलब आपके लैंग्वेज में कोई बेवड़ा आदमी है, तो ऑब्वियसली वो ड्रिंक करता है, तो उसके ब्रीथ में क्या आता है, उसके ब्रीथ में भी अल्कोहल का स्मेल आता है, उसके बॉडी में, उसके ब्रीदिंग में अल्कोहल मिलता है, उसके स्वेट ग्लैंड में भी अल्कोहल मिलता है, क्यों, बिकॉज अल्कोहल इज अ वाटर सोल्यूबल, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल एज सिंपल एज दैट, राइट। तो पैसिव डिफ्यूजन से लंग में होगा, है ना, मतलब आपने अल्कोहल ले लिया, कहाँ जाएगा, एब्सॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, है ना, लंग्स ब्लड लंग्स में जाता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल इज अ वोलेटाइल, सो it is passively diffused in the alveoli of lungs, blood से अल्कोहल पैसिवली लंग्स में जाता है और ब्रीथ से वापस आता है बाहर, एक्सक्रीट होता है। सो यहाँ पे कौन से, सो गैसियस लिक्विड्स, क्योंकि यहाँ पे गैसियस वोलेटाइल लिक्विड्स, गैसियस वोलेटाइल एंड ब्लड एंड टिश्यू इनसोल्युबल ड्रग, ब्लड टिश्यू इनसोल्युबल ड्रग्स दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू लंग, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। सलाइवा में कौन से ड्रग एक्सक्रीट होंगे, सो सलाइवा इज आल्सो ए ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, so in this passive diffusion occurs, drug will be passively diffused in the saliva, also active secretion is also there, active transport is there, secretion मतलब वही। now what type of drug that can be eliminated via saliva, तो यहाँ पे सलाइवा में कौन से ड्रग एलिमिनेट होते हैं ये याद रखो, तो ओनली फ्री ड्रग्स, ओनली फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, लिपोफिलिक एंड सम ऑफ द पोलर ड्रग, देखो यहाँ पे
है ना। आपने अगर एंटीबायोटिक का कोर्स किया, मतलब आपको अगर इन्फेक्शन है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा, तो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो physicians will give you a antibiotics. So what is the antibiotic? So that compound is a antibiotics. They are a bitter compound. Some of the antibiotic they are excreted in the saliva and they will cause bitter mouth. For example, एक ड्रग बोलता हूँ मैं आपको, मेट्रोनिडाजोल. There is one drug known as a metronidazole. Metronidazole is an anti-protozoal drug. So this drug is excreted in the saliva and will cause you metallic taste in the mouth. That's why, because this drug is excreted in the saliva. ये ड्रग का एक्सक्रीशन किस में होता है? सलाइवा में होता है, मेट्रोनिडाजोल का, और ये मेटालिक टेस्ट करता है. राइट. नाउ मिल्क. तो इन द मिल्क आल्सो, मिल्क क्या होता है? पूरा लिपिड का इमल्शन है. सो व्हाट इज मिल्क? मिल्क इज द इमल्शन ऑफ लिपिड. राइट. तो इन द मिल्क आल्सो देयर इज अ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग वाया पैसिव डिफ्यूजन. तो फ्री ड्रग, अनआयनाइज्ड ड्रग, फ्री ड्रग्स अनआयनाइज्ड. अनआयनाइज्ड मतलब क्या है? लिपिड सोल्यूबल, लिपोफिलिक ड्रग. अनआयनाइज्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग, जनरली बेसिक ड्रग. तो जो ये मिल्क पूरा लिपिड है ना, सो मिल्क होल लिपिड मिल्क है, पूरा होल मिल्क क्या है? लिपिड है. तो अब इसलिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग उसमें एक्सक्रीट हो जाएंगे. तो ओनली फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग, अनआयोनाइज्ड लिपोफिलिक ड्रग्स, जनरली बेसिक ड्रग्स, दे आर एक्सक्रीटेड इन द मिल्क. और नेक्स्ट आता है स्वेट ग्लैंड. तो स्वेट में भी क्या है? स्वेट में भी आपका पैसिव डिफ्यूजन होता है. तो इन योर स्वेट देयर इज अ पैसिव डिफ्यूजन. तो ओनली फ्री अनआयोनाइज्ड लिपोफिलिक ड्रग्स एंड वाटर सोल्यूबल ड्रग्स, दे आर एक्सक्रीटेड इन द स्वेट. इन द इंटेस्टाइन आल्सो सम ड्रग्स आर रिलीज्ड इन द इंटेस्टाइन, है ना. ब्लड में से इंटेस्टाइन में ड्रग डिफ्यूज होता है. तो इन द ब्लड, फ्रॉम द ब्लड ड्रग विल बी डिफ्यूज्ड इनटू इंटेस्टाइन पैसिवली. तो पर्टिकुलरली वाटर सोल्यूबल ड्रग एंड आयोनाइज्ड ड्रग. तो ये वाटर सोल्यूबल ड्रग जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड इन द लंग, इन द इंटेस्टाइन. एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको यहाँ पे. वन ड्रग इज नोन एज इरिथ्रोमाइसिन. देयर इज वन ड्रग और वन एंटीबायोटिक इज देयर, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक known as erythromycin. Erythromycin, what happens? Erythromycin is excreted in the intestine. इंटेस्टाइन में एक्सक्रीट होता है, बाद में फिर से एब्सॉर्प्शन होता है ना. एब्सॉर्प्शन होके लीवर में जाएगा, लीवर से बाइल में जाएगा, बाइल में से फिर से इंटेस्टाइन में आएगा, फिर से एब्सॉर्ब होगा, फिर से सेम साइकिल. दैट इज नोन एज एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग. आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट इन अपकमिंग स्लाइड. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. समझ रहे हैं आपको? नेक्स्ट क्या आता है? रेट ऑफ एलिमिनेशन, है ना. रेट ऑफ एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन रेट क्या होता है ना. एक्सक्रीशन रेट, और रेट ऑफ एलिमिनेशन. एक्सक्रीशन रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इनटू, है ना, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और उसका रेज टू, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं. तो रिमेंबर, एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. ये याद रखना है. एलिमिनेशन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. राइट. नाउ सम ड्रग्स आर एलिमिनेटेड वाया जीरो ऑर्डर, सम ड्रग्स आर एलिमिनेटेड वाया फर्स्ट ऑर्डर, है ना. ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है. जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर. तो some drugs are eliminated via zero order, some drugs are eliminated via first order kinetics. So it is a kinetic process. तो कुछ ड्रग जो है जीरो ऑर्डर से एलिमिनेट होते हैं, कुछ ड्रग जो है फर्स्ट ऑर्डर से एलिमिनेट होते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर. नाउ फर्स्ट इज द मोस्ट ऑफ द ड्रग्स. रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे आर एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर kinetics. Most of the drugs they are eliminated via first order kinetics. Most of the drugs they are eliminated by first order kinetics. Okay, so we'll see one by one. So first क्या है कि zero order kinetics. What do you mean by zero order kinetics? Zero order kinetics मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा, आपको हो चुका होगा, है ना, कॉलेज में. Zero order मतलब क्या?
Okay, when the rate of elimination does not depend on any factor, है ना, rate of elimination will not depend on any factor, known as zero order, right? Zero order. But when rate of elimination depends on the one factor, known as the first order, when rate of elimination depends on the two factor, known as second order, है ना, order of reaction आपने देखा होगा उसमें. Now zero order elimination means what? So zero order elimination means a constant amount of drug will be eliminated per unit time. Constant amount of drug will be eliminated per unit time. Suppose if you plot a graph showing, है ना, time versus plasma drug concentration. टाइम एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिखा है और वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, राइट. सो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि 10 mg है ना, यहाँ पे 20 mg, ये 30 mg, 40 एंड 50. तो एंड टाइम यहाँ पे दिया है. नाउ व्हाट डू मीन बाय जीरो ऑर्डर? ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी रिमूव्ड पर यूनिट टाइम. मतलब पर यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट में एक कांस्टेंट अमाउंट, 1 मिनट में से 1 मिलीग्राम रिमूव होगा, है ना, दूसरे मिनट में और 1 मिलीग्राम रिमूव होगा, तीसरे मिनट में और 1 मिलीग्राम रिमूव होगा, चौथे मिनट में और 1 मिलीग्राम रिमूव होगा, है ना. सो ए यूनिट, है ना, ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम. रिमेंबर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी रिमूव्ड पर यूनिट टाइम. फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है अल्कोहल, जैसे अल्कोहल है ना, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए यहाँ पे 100 mg, फॉर एग्जांपल ये वन जो दिख रहा है यहाँ पे 100 mg है, मान लीजिए यहाँ पे 200 mg, 300 mg, 400 mg एंड 500 mg अल्कोहल आपने ले लिया. सो इफ यू आर ड्रिंक अल्कोहल एंड इफ यू विड्रॉ द सैंपल ऑफ ब्लड, आपने अल्कोहल ले लिया, आपकी ब्लड सैंपल ले लिए और उसको एनालाइज किया, ठीक है ना, टाइम एनालाइज किया, तो पहले कितना था, बाद में कितना था, ऐसा है ना. सो एग्जांपल, है ना. तो ये तो एब्सॉर्प्शन हो जाएगा आपका, बट एलिमिनेशन क्या रहेगा, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल विल बी एलिमिनेटेड. जैसे मान लीजिए डेल्टा इक्वल टू 20 mg पर 100 ml पर आवर, मतलब क्या 100 ml यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है 1 आवर में, तो उसमें 20 मिलीग्राम अल्कोहल रिमूव हो जाएगा, राइट. तो एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग डेल्टा इज 20 mg, ये कॉन्स्टेंटली 20 mg पर 100 ml पर आवर ये रिमूव हो जाएगा. मतलब ये है ना, यहाँ पे 20 mg हो गया, तो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया ना 20 mg से, फिर भी नेक्स्ट इसमें भी 20 mg होगा, नेक्स्ट इसमें भी क्या होगा 20 mg तक, नेक्स्ट इसमें भी क्या होगा 20 mg तक, है ना. प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितना है डजंट मैटर. तो इन दिस केस the drug will be eliminated, constant amount of drug will be eliminated regardless its plasma drug concentration. क्या होगा, जीरो ऑर्डर में एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, डजंट होगा नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, कि प्लाज्मा में कितना ड्रग है डजंट मैटर. एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग, जैसे 20 mg पर आवर, हर एक घंटे में, हर एक आवर में 20 mg ड्रग कम हो जाएगा, है ना, हर एक आवर में 20 mg ड्रग कम हो जाएगा, राइट. So that is nothing but zero order elimination. And you will get a straight line graph over here. If you will get a straight line graph. If you plot a drug concentration versus time, you will get a one graph known as a straight line, okay, with the slope. Okay. Now the equation for first order elimination. First order elimination का equation ये होता है dc upon dt is equal to minus k. Minus क्यों है, क्योंकि एलिमिनेट हो रहा है, माइनस के एलिमिनेट हो रहा है, राइट, है ना. अगर एब्सॉर्ब हो रहा होता तो सिर्फ के ही आता है ना, के माइनस डीसी अपॉन डीसी मतलब क्या है, डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन. डीसी मतलब डिक्रीज इन नहीं, वैसे चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है. ये डीसी अपॉन डी टी मीन्स चेंज इन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस के ई एल. ई एल मतलब एलिमिनेशन, के ई एल मतलब एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट. ये क्या है, elimination rate constant, right. So a constant amount of drug will be eliminated per unit time, known as a zero order elimination. For example, alcohol, है ना, तो drugs removed by zero order, है ना, there are drugs, example of drug removed by zero order, है ना,
ये का एक ट्रिक है, 0 वैट पावर, 0 वैट पावर, ZERO वैट पावर, है ना। अल्कोहल उसमें आता है, उसमें उसमें वारफेरिन आता है, उसमें फेनिडेन आता है। देयर आर ड्रग्स विच आर रिमूव्ड बाय जीरो ऑर्डर का एलिमिनेशन। आपको एग्जांपल बाद में आएंगे, आपको एग्जांपल फिर बुक्स में एक बुक है, आपको मैं बोलूँगा उसमें दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे आर एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एलिमिनेटेड बाय व्हिच काइनेटिक्स, most of the drugs eliminated by first order kinetics. So in this, a amount of drug eliminated per per unit is proportional to the plasma drug concentration, right? The amount of drug eliminated per unit time is dependent on the concentration. यहाँ पे concentration term आ गया है, it depends on the concentration. So that's why यार a constant percentage of drug will be eliminated per unit time. तो पहले केस में क्या था, in case of zero order, constant amount of drug will be eliminated per unit time regardless plasma drug concentration, है ना। plasma drug concentration पहले केस में मैटर ही नहीं करता, और zero order plasma drug concentration doesn't matter. So only constant amount of drug will be eliminated per unit time. जैसे for example in case of alcohol, जैसे यहाँ in this case 20 milligram per 100 ml per hour. But in case of first order elimination, a amount of drug eliminated per unit time that depends on the प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन आपका, जैसे मान लीजिए 50 mg, तो 50 mg जब कॉन्सेंट्रेशन था तो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या था, रेट ऑफ एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। व्हेन देयर वाज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा, रेट ऑफ एलिमिनेशन वाज हायर। जैसे जैसे कम होता गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गए 40 पे, थोड़ा सा रेट ऑफ एलिमिनेशन कम हो जाएगा। मान लीजिए 30 पे आ गए, रेट ऑफ एलिमिनेशन और कम होगा। मान लीजिए 20 मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेशन है आपकी बॉडी में, रेट ऑफ एलिमिनेशन और भी कम हो जाएगा। मान लीजिए 100 mg ड्रग है, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन और भी कम हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट ए कांस्टेंट, ओके, एंड द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड विल डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन. So in this case, a constant percentage of drug will be removed. Percentage, okay, a constant percentage of drug will be eliminated per unit time. मतलब मान लीजिए, है ना, यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ लो आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आप यहाँ पे इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हो आप, राइट। से फॉर एग्जांपल जैसे 500 mg ड्रग है आपके प्लाज्मा में, तो वो उस टाइम पे क्या होगा, है ना, 500 mg ड्रग है, तो मान लीजिए यहाँ पे 50%, है ना, 50% ड्रग, मान लीजिए 500 mg ड्रग है आपके प्लाज्मा में और उसका 50% ड्रग क्या है, एलिमिनेट होगा। 500 mg ड्रग इज देयर इन अ प्लाज्मा, so at that time 50% drug will be removed. ड्रग विल बी रिमूव्ड। तो 500 mg से 50% का कितना हो गया, 250 mg। तो 50% मतलब 250 mg, राइट, 250 mg, राइट। नाउ बॉडी में बचा कितना है, 250 mg। तो 250 mg से भी 50% ड्रग रिलीज होगा। 250 mg का 50% कितना होगा, है ना, 120 mg, है ना। इसका 250 mg बचा, उसके बाद में भी 50% ड्रग एलिमिनेट होगा। बचा कितना, 120, है ना, 125 mg। 125 का भी 50% कितना, है ना, कुछ आएगा, 125 का 50% आएगा आपका कुछ, है ना, 7.5, मतलब 100, है ना, 125 का आएगा आपका 76। तो यहाँ पे रहेगा आपका 76 mg ड्रग, है ना, 76 mg ड्रग आपका प्लाज्मा में है। तो 76 है ना, 76 का भी 50% ड्रग रिमूव हो जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन विल डिक्रीज एज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। जैसे प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा रहेगा। प्लाज्मा में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड दैट्स व्हाई a constant percentage of drug is eliminated per unit time, which is a dependent on plasma drug concentration, in case of
first order elimination, and in case of zero order, a constant amount of drug will be removed regardless the plasma concentration. यहाँ पे plasma concentration कितना है देखेगा भी नहीं. So those drug which are eliminated by zero order, a constant amount of drug will be eliminated, है ना, which is not dependent on the plasma concentration. But in case of first order, so it is dependent on the plasma concentration. So what is the equation for first order? So dc upon dt, मतलब decrease in the concentration of drug in the plasma is equal to minus KEL. मतलब ये क्या है, elimination rate है, minus KEL elimination rate. What is that? C is nothing but the plasma concentration, है ना. So rate of elimination depends on the plasma concentration in case of first order. और ये जो मैंने अभी इतना बोला है ना, इसके ऊपर अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं. इसके ऊपर अभी तक 3 नहीं, अभी तक इसके ऊपर कम से कम बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बट 3-4 क्वेश्चन कॉमन आ चुके हैं. यहाँ पे 2-3 है ना, 3-4 क्वेश्चन कॉमन आ चुके हैं. जैसे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग विल बी लिमिटेड पर यूनिट टाइम इन फॉलोइंग ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, नॉन लीनियर काइनेटिक्स, ऐसा ऑप्शन आएंगे आपको. एक है ना, एक कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ड्रग विल बी एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम डिपेंडिंग अपॉन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लाइन आएगा. ऑकर्स इन ऑप्शन ए जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, ऑप्शन बी फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, ऑप्शन सी सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन, ऑप्शन डी, है ना. ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको. सो कंसेप्ट अगर क्लियर है आपका तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे. रिमेंबर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट. In the first order, a 50% for each T half, 50% for each T half, है ना. तो आपको इसके ऊपर जब फार्मेसी गेट था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो अभी इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही बोल रहा हूँ. अभी गेट नहीं, गेट में तो पूछते थे, गेट में क्या पूछते थे कि when the rate of elimination when the rate of elimination is this, plasma concentration of is this, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन इन द प्लाज्मा आफ्टर 30 आप, मतलब वो गेट के टाइम थे, तो इसलिए गेट के टाइम पे थे वैसे क्वेश्चन आते थे. अभी वो नहीं आते, तो वो इसलिए वो पूरा डिटेल में नहीं दे रहा. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एलिमिनेशन काइनेटिक्स, राइट. नेक्स्ट पार्ट विल सी अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग. ओके, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. Glomerular filtration depends on the plasma protein binding and renal blood flow, but does not depends on the lipid solubility. So it depends on the plasma protein binding. अगर प्लाज्मा प्रोटीन को ड्रग बाउंड होता है तो दैट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फिल्ट्रेशन. रिनल ब्लड फ्लो कम है तो कम ड्रग फिल्टर होगा, राइट, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द लिपिड सोलिबिलिटी. So both lipid soluble as well as water soluble drug will be filtered through glomerulus. है ना. There are 3 process for urine formation. Urine formation किस में होता है? 3 स्टेप में होता है. फर्स्ट स्टेप क्या होता है urine formation का? फर्स्ट स्टेप is a glomerular filtration. Okay, so filtration of blood in the glomerulus except blood cell and plasma proteins. Everything is filtered. Then tubular reabsorption, मतलब किडनी में reabsorption होता है. तो whatever is required, आपका जो अमाइनो एसिड होता है, विटामिन होता है, शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर बॉडी, आयंस वगैरह, है ना, सॉल्ट्स, देन इसेंशियल एलिमेंट्स, दैट विल बी रीअब्सॉर्ब. तो इट डिपेंड्स ऑन द लिपोफिलिसिटी. तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स डिपेंड्स ऑन द लिपिड सोलिबिलिटी. तो लिपोफिलिक ड्रग विल बी रीअब्सॉर्ब्ड एंड लेस विल बी एक्सक्रीटेड. ओके, एंड वाटर सोल्युबल ड्रग के लिए उसके अपोजिट, जैसे वाटर सोल्युबल ड्रग है इट विल बी लेस रीअब्सॉर्ब्ड एंड एक्सक्रीटेड मोर. So that's why there is a role of metabolism. Metabolism का रोल क्या है कि बॉस मेटाबॉलिज्म क्या करता है, लिपिड सोल्युबल ड्रग को पोलर ग्रुप से ऐड करता है, वाटर सोल्युबल बनाता है, ताकि वो इजीली रिमूव हो सके यूरिन में. अगर लिपिड सोल्युबल ही रखेंगे तो रिमूव होगा ही नहीं ना. क्यों? क्योंकि यूरिन में क्या है, किडनी में रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है. किसका हो रहा है रीअब्सॉर्प्शन? लिपिड सोल्युबल ड्रग का. अगर लिपिड सोल्युबल ड्रग ही है तो वो बॉडी में ही रहेगा, इलिमिनेट नहीं होगा ना. और बॉडी का ये सीधा नियम है कि आप जो भी अंदर डाल रहे हो बाहर निकलना पड़ेगा. खाना खा रहे हो आप उसको छोड़ रहे हो, सुबह मॉर्निंग में पानी पी रहे हो, जितना पानी पी रहे हो छोड़ रहे हो उसको, राइट. तो अदरवाइज पॉइजनिंग हो जाएगा, है ना. तो इन केस ऑफ पॉइजनिंग विद द, है ना,
In case of poisoning with the basic drug, in case of poisoning with the basic drug, you have to acidify the urine. In case of poisoning of acidic drug, you have to alkalize the urine. I have told you this concept before also. तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बोला है. इन केस ऑफ अगर आपको एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हुआ है तो आपको अल्कलाइज करना है यूरिन को. अगर बेसिक ड्रग का पॉइजनिंग हुआ तो एसिडिफाई करना है यूरिन को. ठीक है. तीसरा स्टेप होता है आपका एक्टिव सिक्रेशन. तो एक्टिव सिक्रेशन मतलब क्या है? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लिपिड सोल्युबिलिटी अगेन एंड प्रोटीन बाइंडिंग. सेपरेट एक्टिव पम्प्स आर अवेलेबल फॉर एसिडिक एंड बेसिक ड्रग रिस्पेक्टिवली. इफ टू डिफरेंट ड्रग्स आर हैविंग सेम पम्प, तो फॉर एक्सक्रीशन रिजल्ट इन द एक्सक्रीशन ड्रग इंटरेक्शन, है ना. तो एक्टिव सिक्रेशन क्या है कि एक्टिव सिक्रेशन प्रोसेस जो है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लिपिड सोल्युबिलिटी एंड प्रोटीन बाइंडिंग, है ना, है ना. तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोटीन बाइंडिंग और बिकॉज इट इज अ एक्टिव प्रोसेस. सेपरेटली पंप्स आर देयर, मतलब इफ्लक्स पंप्स होते हैं. ये भी क्या है? प्रोटीन्स होते हैं. तो दे यूज टू बाइंड द ड्रग एंड दे यूज टू एक्सक्रीट. so that doesn't depend on the lipid solubility and प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. बट अगर कोई ड्रग्स है, जैसे दो ड्रग्स है, ड्रग ए ड्रग बी, वो सेम ही पंप से रिमूव हो रहे, तो अगर दोनों ड्रग साथ में दिए तो देर विल बी इंटरेक्शन नोन एज अ ड्रग ड्रग एक्सक्रीशन इंटरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल ये कभी बेनिफिशियल भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोबेनिसिड. सो देर इज वन ड्रग नोन एज अ प्रोबेनिसिड, तो डिक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन कम करेगा. कौन कम करेगा? प्रोबेनिसिड. तो प्रोबेनिसिड इज यूज्ड टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन. तो जानबूझ के ये प्रोबेनिसिड पेनिसिलिन के साथ में देते हैं ताकि पेनिसिलिन लंबे समय तक बॉडी में रहे. तो यूरिक एसिड इज रिटेन्ड एंड पेनिसिलिन इज रिमूव्ड. प्रोबेनिसिड क्या होता है? यूरिकोसोरिक ड्रग होता है. यूरिकोसोरिक ड्रग, यूरिकोसोरिक ड्रग. Now difference between first order elimination and zero order elimination. तो यहाँ पे difference between first order elimination and zero order. तो देखो linear kinetics first order kinetics को बोलते हैं अपन linear kinetics, non linear zero order kinetics. linear क्यों बोलना है? जैसे concentration कम हो गया तो rate of भी कम हो जाएगा, concentration ज़्यादा है तो rate ज़्यादा रहेगा. That's why linear. नॉन लीनियर मतलब है कॉन्सेंट्रेशन से, कॉन्सेंट्रेशन कितना है प्लाज्मा में डजंट मैटर. तो इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिमेंबर ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग. इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन. रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं. लीनियर ओके. एंड इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग और परसेंटेज ऑफ ड्रग विल बी रिमूव्ड पर यूनिट टाइम depends on the plasma concentration, right? Now in case of zero order देखो elimination rate is independent. Elimination rate is independent on the plasma concentration, but in case of first order elimination rate जो है वो dependent होता है किसके ऊपर? plasma concentration. So rate is proportional to the plasma concentration. Now in the zero order half life is less at lower concentration. In a zero order half life is less at a lower concentration, it is a more at a higher concentration. Half life remains constant in the first order concentration. First order जो rate process है उसमें half life constant होता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. And that's why half life is a characteristic of first order kinetic. ये क्वेश्चन दे चुका है. When we'll see the chemical kinetics chapter from physical pharmacy, at that time also you will get most of the drugs follow first order kinetics. मैंने बोला था 90% of drugs will follow first order kinetics, right? And zero order kinetics कैसे? zero order kinetics के ड्रग कौन से ड्रग फॉलो करते हैं? zero watt power. zero watt power क्या है? एक ट्रिक है. zero watt power zero order kinetic is shown by जैसे warfarin, alcohol, aspirin, theophylline, tolbutamide and phenytoin. zero watt power, है ना. तो ये देखो WATT, ये याद रखना. WATT, W for warfarin, A for alcohol, T for A for alcohol and aspirin, T for theophylline, tolbutamide and P for phenytoin. So that's how you can remember the drug which follows the zero order kinetics. ठीक है. तो
Now again you see a typical plasma drug concentration versus time curve. I already told you this, है ना. तो ये आपने अगर orally drug ले लिया, so if you plot a plasma drug concentration versus time curve, so a typical curve is known as a typical curve you will get known as a typical plasma drug concentration versus time curve, है ना. So if you take a drug orally and if you check the plasma drug concentration, so initially plasma drug concentration will increase, it will go up to a certain point, after that it will decrease. So this phase is known as absorption phase, and this phase is known as the elimination phase. So absorption phase, elimination phase, ठीक है. So in this you are going to get various kind of terms. पहला है आपका minimum effective concentration. तो minimum effective concentration क्या होता है? It is nothing but the minimum concentration of drug in the plasma to show the pharmacological effect. Minimum effective concentration, MEC. तो minimum concentration of drug in the plasma to show the pharmacological effect. ठीक है. दूसरा टर्म होता है आपका मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन. ये फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ले चुका मैं. मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा above which there is a toxic effect, and minimum effective concentration is a concentration required to show the pharmacological effect. Below the MEC, below the minimum effective concentration, drug will not be active, known as a subtherapeutic level. तो कम से कम इतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपको बॉडी में. हर एक ड्रग का अलग अलग होता है वो, दैट्स व्हाई. एंड द कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन. देखो ये क्वेश्चन आ चुका है. द कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन MEC एंड MSC. कॉन्सेंट्रेशन रेंज क्या है? कॉन्सेंट्रेशन रेंज, द कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन दिस MEC एंड MSC. इतना जो रेंज है कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज नोन एज अ थेरापेटिक विंडो और थेरापेटिक रेंज. तो कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन MEC एंड MSC, दैट इज नोन एज अ थेरापेटिक विंडो. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, राइट. सो मोर विल बी द रेंज, सेफ विल बी द ड्रग, है ना. सेफ विल बी द ड्रग, ठीक है. देन above the MSC there is a toxic effect, below the above the MSC there is toxic effect, below the MSC there is a no effect or subtherapeutic level, no effect, ठीक है. Now the time duration for which drug remains above the MEC, the time duration for which drug remains above the MEC is known as the duration of action, and total integrated area under the curve is known as the area under curve, ठीक है. The highest concentration of drug in the plasma is known as the highest concentration of drug in the plasma is known as the peak plasma level or Cmax. That is the maximum concentration of drug. At this, rate of absorption is equal to rate of elimination, ठीक है. Rate of absorption is equal to rate of elimination. ये इसको बोलते हैं अपन absorption phase. ये absorption phase होता है और ये phase elimination phase होता है, ठीक है. So I have already told you this. Onset time means what? It is the time required to achieve the minimum effective concentration from the time of administration. आपने ड्रग ले लिया, उसके बाद में ड्रग लेने के बाद में कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में ड्रग प्लाज्मा में आएगा और मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे आएगा. तो जो टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा नोन एज ऑनसेट टाइम. ऑनसेट टाइम, ठीक है. ओके, सो सेम डेफिनेशन विल सी. सो पीक प्लाज्मा लेवल क्या होता है? Peak plasma level is also known as Cmax, and it is nothing but the concentration of drug at the peak level. That is, peak is the point where there is a maximum concentration of drug in the plasma. It is known as a peak plasma level or Cmax. Peak plasma level or Cmax. क्या होता है? It is a drug. It is a concentration of drug at a peak level. Peak is the point where there is a highest concentration of drug in the body, known as the peak plasma level. This is expressed as a microgram per ml. ठीक है. नेक्स्ट आता है टाइम पीक कॉन्सेंट्रेशन. टाइम ऑफ पीक कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द Cmax इज नोन एज द Tmax. टाइम टू रीच पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर एक्स्ट्रावेस्कुलर. एक्स्ट्रा मतलब क्या? अदर देन. वेस्कुलर मतलब क्या? ब्लड से, मतलब इंट्रावेनस से नहीं, एक्स्ट्रावेस्कुलर बाकी रूट से, इज नोन एज द टाइम ऑफ पीक कॉन्सेंट्रेशन. तो टाइम ऑफ ड्रग टू रीच अ पीक कॉन्सेंट्रेशन after the extravascular administration is known as a peak, is known as the time of peak concentration, ठीक है. थर्ड आता है आपका एरिया अंडर कर्व. टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर कर्व, ठीक है. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एक, टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर कर्व, है ना. टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल. नाउ व्हाट डू यू AUC विल इंडिकेट? AUC क्या देगा?
So area under curve indicate the total amount of drug present in the blood. Total amount of drug that comes into systemic circulation after its administration. मतलब total integrated area AUC will indicate you the total amount of drug present in the blood. इसके ऊपर क्वेश्चन था. What AUC indicate? AUC will indicate the total amount of drug that comes into systemic circulation. Area under curve is given in the microgram per ml per hour. ठीक है. Then dynamic parameter में minimum effective concentration क्या है? Is the concentration of drug at a receptor site to show the pharmacological effect. है ना. Minimum effective concentration क्या है? It is a minimum concentration of drug at the site of action to show the pharmacological effect. The concentration below the MEC is known as the subtherapeutic level. अगर MEC के नीचे है तो subtherapeutic level है ना. तो minimum effective concentration is the term, है ना. MEC है ना. MEC is the term for most of the drugs. बाकी ड्रग के लिए कौन से जितने भी ड्रग्स है उसके लिए MEC है. बट एंटीबायोटिक अगर है, इफ देर इज अ एंटीबैक्टीरियल ड्रग, इफ देर इज एंटीबायोटिक, सो देन MIC टर्म इज यूज्ड. MIC मतलब क्या होता है? अगर आपका ड्रग एंटीबायोटिक है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग MEC, अगर आपका ड्रग एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, एंटीबायोटिक है, तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ये टर्म यूज करने के बजाय आप क्या यूज करना है? है ना, MIC. एक्सेप्ट एंटीबायोटिक यू कैन, है ना. तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इज द टर्म फॉर ऑल ड्रग एक्सेप्ट एंटीबायोटिक. फॉर एंटीबायोटिक MIC is the term. What is MIC? Minimum inhibitory concentration. ये क्या होता है? It is the minimum concentration of antibiotic in the plasma that is required to kill or inhibit the growth of microorganisms. That is a minimum inhibitory concentration. तो बाकी ड्रग के लिए आप मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ये टर्म यूज करेंगे. अगर एंटीबायोटिक है उसके लिए आपको मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन ये टर्म यूज करना है. क्वेश्चन आता है. मैक्सिमम से कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? इट इज द मैक्सिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग. above this plasma level concentration there will be unwanted effect or toxic effect. ये होता है मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन. नेक्स्ट आता है ऑनसेट ऑफ एक्शन. ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब क्या? इट इज द बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो आपने ड्रग ले लिया अभी, लेकिन आधे घंटे के बाद में एक्शन चालू हो गए, है ना. आपका सिर दुख रहा है, आपने पैरासिटामोल लिया है, इमीडिएटली आपका सिर कम नहीं हुआ, धीरे धीरे कम हुआ. बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज नोन एज ऑनसेट ऑफ एक्शन. ऑनसेट टाइम मतलब क्या? नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, दैट इज ऑनसेट टाइम. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब क्या? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, द टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स अबव द MEC. The time for which plasma concentration remains above the MEC level, also known as the time difference between onset time and time to decline the back means. That is nothing but the duration of action. Next आता है term therapeutic range. ये क्वेश्चन GPAT में आ चुका है 2 बार. मैं जैसे बोला था, it is the concentration range between the minimum effective concentration and maximum safe concentration. And it is also known as a therapeutic window, therapeutic range or therapeutic window. There is another term therapeutic index. Therapeutic index जो होता है वो अलग होता है, therapeutic range अलग होता है. Therapeutic index मतलब क्या है? ELD50 to ED50. तो ये therapeutic range, therapeutic index में confuse नहीं होना है. Therapeutic index is nothing but the concentration range. ये एक range है, that's why it is known as a range. Therapeutic range क्या कौन सा range है भाई? So range of concentration between minimum effective concentration to the maximum safe concentration, also known as a therapeutic window. ठीक है. Now dose adjustment definition. तो definition होते हैं 2 फार्माकोलॉजी में आपके. तो फर्स्ट इज अ मीडियम लीथल डोज, है मीडियम लीथल डोज, एंड दूसरा होता है मीडियम इफेक्टिव डोज. तो लीथल मतलब क्या भाई? याद रखना है आपको. लीथल मतलब क्या? तो लीथल मतलब क्या है ना? लीथल इफेक्ट मतलब क्या? किलिंग इफेक्ट. लीथल मीन्स किलिंग. सो मीडियम लीथल डोज मतलब क्या? आल्सो डिनोटेड बाय LD50. So it is the dose of drug milligram per kilogram
which can kill the 50% of population in a same species or strain. मतलब मान लीजिए आपके पास में क्या है, 100 कुत्ते। कितने कुत्ते हैं आपके पास में? 100 कुत्ते। आप बहुत अमीर हो, आपने क्या किया, 100 डॉग्स पाल ली। आपके पास में 100 कुत्ते है ना, 100 कुत्ते, उसमें आपने एक ड्रग का ट्रायल किया। सपोज आपने एक ड्रग आपने चुपके चुपके रिसर्च किया, किसको बोलना नहीं है, तो आपके घर में कुत्ते 100 कुत्ते, 100 कुत्ते में से 100 कुत्ते को आपने ये टेस्ट करने के लिए दिया था, कौन सा, एक ड्रग, डोज दिया। तो अगर उसमें के 50% ड्रग, मतलब उसमें के 50 कुत्ते मर गए, एक डोज दिया आपने और 100 में से 50 कुत्ते मर गए, तो उसको बोलेंगे अपन मीडियम लीथल डोज। तो डोज रिक्वायर्ड टू किल द 50% ऑफ पॉपुलेशन, डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम रिक्वायर्ड टू किल द 50% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब मीडियम लीथल डोज। मीडियम इफेक्टिव डोज मतलब क्या, इफेक्टिव मतलब ये इफेक्ट दिखाया, तो इट इज अ डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम विच कैन प्रोड्यूस ए डिजायर्ड इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। 100 कुत्ते ये डोज में है ना, आपने क्या किया, एक ड्रग डिस्कवर किया। पहले क्या किया, आपको लगा कि 50 mg देना है, आपने 50 mg दे दिया, तो आधे कुत्ते मर गए, तो आपको मालूम हो गया मीडियम लीथल डोज कितना है, 50 मिलीग्राम है ना। तो आपने क्या किया, अभी आपने 10 मिलीग्राम ड्रग दे दिया, तो 10 मिलीग्राम दिया, तो जो कुत्ते इंज्योर थे वो क्लियर हो गए, मतलब इट इज अ इफेक्टिव डोज। तो डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम विच कैन प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिस्पॉन्स इन द 50% ऑफ पॉपुलेशन। और ये टर्म आता है नेक्स्ट है थेरापेटिक इंडेक्स। देखो थेरापेटिक इंडेक्स, नाउ इट इज द रेशियो ऑफ LD50 टू द ED50। क्या है भाई, रेशियो ऑफ LD50 टू द ED50, है ना। LD50 में क्या है, लीथल डोज, मीडियम लीथल डोज, एंड ED50 मतलब मीडियम इफेक्टिव डोज। तो रेशियो ऑफ LD50 डिवाइडेड बाय ED50 इज नथिंग बट द थेरापेटिक इंडेक्स। रेशियो ऑफ ED50 टू द, है ना, रेशियो ऑफ LD50 टू द ED50 is nothing but the therapeutic index. Dose required to produce a toxic at a, है ना, toxic और lethal effect, तो dose produce हुआ, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है थेरापेटिक इंडेक्स का। थेरापेटिक इंडेक्स इज इक्वल टू LD50 डिवाइड बाय ED50, है ना। और थेरापेटिक इंडेक्स और थेरापेटिक विंडो ये क्या है, डिफरेंट टर्म्स है। नाउ थेरापेटिक इंडेक्स क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। थेरापेटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग। अगर किसी ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स ज्यादा है, तो मतलब वो ड्रग क्या है, ज्यादा सेफ है। किसी ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स कम है, मतलब क्या है, वो ड्रग ज्यादा सेफ नहीं है। तो थेरापेटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, ड्रग कितना सेफ है, ये कौन कैसे पता चलेगा आपको, थेरापेटिक इंडेक्स, क्योंकि लीथल डोज 50 डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज 50। अगर इसका रेंज बहुत ही कम है, तो मतलब वो ड्रग ज्यादा सेफ नहीं है ना। थेरापेटिक इंडेक्स ज्यादा है उसका, मतलब वो ड्रग सेफ है ना। मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है बॉस, कि मान लीजिए कि LD50 मतलब 50% किल करने वाला डोज कितना है, 10 मिलीग्राम, है ना। और इफेक्टिव डोज कितना है, मान लीजिए 7 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो द ड्रग इज हैविंग लेस सेफ्टी ऑफ मार्जिन। बट LD50 है आपका 50 मिलीग्राम, और आपका इफेक्टिव डोज है आपका, है ना, मतलब LD50 आपका 500 मिलीग्राम, इफेक्टिव डोज है आपका 10 मिलीग्राम, है ना। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज अ सेफ ड्रग। तो मोर विल बी द डिफरेंस बिटवीन LD50 एंड ED50, सेफर विल बी द ड्रग। दैट्स वाई थेरापेटिक इंडेक्स इज द मेजर ऑफ सेफ्टी ऑफ मार्जिन। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, इट मेजर्स द सेफ्टी ऑफ मार्जिन, थेरापेटिक इंडेक्स मेजर द सेफ्टी ऑफ मार्जिन। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल टू यू, यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग अंडरगोइंग द रिएक्शन, रेट ऑपरेशन कैन नॉट बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या है, इट इज नोन एज अ कांस्टेंट रेट प्रोसेस, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आल्सो नोन एज अ कांस्टेंट रेट प्रोसेस, और द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग अंडरगोइंग द रिएक्शन, है ना। तो उसका इक्वेशन होता है dC/dt इज इक्वल टू K।
जीरो ऑर्डर का इक्वेशन होता है DC अपॉन dt इज इक्वल टू के, ना इक्वेशन होता है सी यहाँ पे एडिशनली बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, तो DC अपॉन dt इज इक्वल टू के, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हाफ लाइफ कितना होता है, मतलब हाफ लाइफ मतलब क्या होता है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 50% रिडक्शन, तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इज 0.5 C divided by K, that is half life. First order क्या है, it is known as a zero order kinetics, administration of drug by constant intravenous infusion, control drug, control the and control drug जब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम लाइक इम्प्लांट्स एंड ऑस्मोटिक फॉर्म्स, दे विल फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जैसे इम्प्लांट्स है, ऑस्मोटिक फॉर्म्स है, जैसे इंटरवेनस से ड्रग देंगे आप, अगर इंटरवेनस से इन्फ्यूजन दे रहे हैं, सलाइन लगा दिया, सलाइन विल फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है आपका, तो it is known as the rate is directly proportional to the concentration, so that's why it is known as the linear kinetics। ये दो टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। जीरो ऑर्डर में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या, कांस्टेंट रेट प्रोसेस, एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब क्या, लीनियर काइनेटिक्स, है ना। तो rate of reaction will directly proportional to the undergoing reaction, the concentration of drug undergoing reaction, ठीक है। So it depends on the one term known as concentration, and greater will be the concentration, faster will be the reaction, that's why जैसे एलिमिनेशन में भी होता था, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कम है रेट ऑफ एलिमिनेशन कम होगा, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मोनो एक्सपोनेंशियल रेट प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मोनो एक्सपोनेंशियल रेट प्रोसेस, एंड एज अ characterized by constant fraction of drug will be undergo per unit time, जैसे एलिमिनेशन में हो। तो इक्वेशन क्या है, DC अपॉन dt इज इक्वल टू K0C, है ना। K क्या है, K क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट फंक्शन, इसका हाफ लाइफ होता है 0.693 डिवाइड बाई के, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये हाफ लाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, 0.693 डिवाइड बाई के, 0.693 डिवाइड बाई के द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर रेट। डिटेल में अपन फिजिकल फार्मेसी में देखें तो most pharmacokinetic processes like absorption, distribution, elimination follows the first order kinetics. Mixed order kinetics क्या होता है, mixed order kinetics, right? So it is described by Michaelis-Menten equation when you will see the enzymes at the time will come. It is also known as the dose dependent kinetics. Michaelis जो mixed order kinetic है उसको बोलते हैं dose dependent kinetics, and it is observed in the absorption of vitamin C, distribution of naproxen, elimination of riboflavin. ये mixed order kinetics, non linear kinetics, mixed order kinetics also known as, ये जो terms है zero order kinetics constant trend process important, first order kinetics linear process, linear kinetics important, mixed order kinetics नॉन लीनियर काइनेटिक्स, सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ही स्लाइड है ये, यहाँ पे कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, तो कांस्टेंट रेट प्रोसेसेस आपको ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, मिक्स ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। जीरो ऑर्डर इज अ कांस्टेंट रेट प्रोसेस, लीनियर काइनेटिक्स कौन होता है, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और ये क्वेश्चन आज इट जैसा आया था कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, ऐसा ये इक्वेशन दिया था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के इज अ हाफ लाइफ प्रोसेस फॉर, ऑप्शन ए जीरो ऑर्डर, ऑप्शन बी फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी मिक्स ऑर्डर, ऐसा आता है। वैसे भी यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए ये इक्वेशन 0.5 से डिवाइड बाय के याद रखना है आपको, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आर फॉलोड बाय intravenous administered fluids, IV fluids follow zero order kinetics, and control drug delivery system will also follow zero order kinetics like implants and osmotic pumps.
नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू एनहांस द एब्सॉर्प्शन, है ना, टू प्रोलॉन्ग द ड्रग एक्शन, मतलब मेथड्स टू एनहांस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। कोई ड्रग अगर शॉर्ट ड्यूरेशन है उसको ड्यूरेशन इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, तो फॉर एग्जांपल यू कैन, है ना, कैन decrease the absorption by forming a sustained release operation like coating with resin exercise, है ना। ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आपको, आपका थर्ड ईयर में है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा इसका, राइट। सो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस, है ना, सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन करेंगे विद रेजिन, तो ये स्लोली एब्सॉर्ब होगा। फॉर एग्जांपल आयरन एंड डेरी फाइव, तो ये एब्सॉर्प्शन आपको स्लो क्यों करना है, बिकॉज एडवर्स इफेक्ट। तो ये आयरन जो होता है ना, दैट इज इरिटेंट टू योर जीआईटी, ये आयरन है ना, इट इज इरिटेंट टू योर जीआईटी, और ये एब्सॉर्प्शन नहीं होता है ज़्यादा। तो आयरन का एब्सॉर्प्शन स्लो होता है, टू एनहांस द एब्सॉर्प्शन, तो स्लोली उसका रिलीज करना है ड्रग का, है ना। तो सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन, कोटिंग विद द रेजिन, है ना, ओरल। अगर पेरेंटल फॉर्मुलेशन है, पेरेंटल फॉर्मुलेशन, तो यू कैन डिक्रीज द सॉल्यूशन। तो इफ यू वांट टू एनहांस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाना है आपको, है ना। कोई ड्रग अगर एक हाफ एन आवर के लिए एक्टिव है तो उसका 1 आवर तक लेके जाना है, तो कैसे करेंगे, मेथड्स टू एनहांस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो पेरेंटल के लिए यू कैन रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी, है ना, जो ड्रग है वाटर सोल्यूबल है तो उसको इमल्शन बनाओ, ऑयली प्रिपरेशन को, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन पेरिसिल, है ना, अल्टरनेट अनडिपोर्ट प्रिपरेशन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करना है, altering the particle size given in the large crystal and altering the particle size given as a large crystal which are absorbed slowly। जैसे इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है, तो इंसुलिन दिया फटाफट एक्ट होगा और खत्म हो जाएगा। तो आपको सस्टेन एक्शन चाहिए, आपको ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना है दिन भर। ऐसा नहीं कि सुबह इंसुलिन ले लिया, मतलब सुबह नेटिव जो इंसुलिन है वो एक हाफ एन आवर 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, बाद में फिर से हाइपोग्लाइस में होगा, फिर से ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो सस्टेन एक्शन चाहिए, बहुत देर तक है। तो इंसुलिन का सस्टेन एक्शन कैसे करेंगे, तो इंसुलिन जिंक प्रिपरेशन इज मेड विच इज नोन एज क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन विच विल हैव अ सस्टेन एक्शन। पेलेट बना सकते हैं, पेलेट इम्प्लांटेशन, साइलेस्टिक कैप्सूल। वैसे पेलेट इम्प्लांटेशन मतलब क्या कि इम्प्लांट कर दो ड्रग का एक रिजर्वायर बना के, और आपको एक बार में मैग्नेट उसको फिरो ना, ऐसा मैग्नेटिक कैप्सूल होता है, वो आपके स्किन के अंदर इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। और आपके हाथ में बाहर एक मैग्नेट होता है, ठीक है। जैसे दिन में एक बार मैग्नेट घुमाना है उसके ऊपर, एक बार घुमा दिया 10 मिलीग्राम ड्रग रिलीज करेगा, दिन भर आपको टेंशन नहीं, है ना। महीना, है ना, 6 महीने 7 महीने। तो जो हार्मोन्स के प्रिपरेशन होते हैं, हार्मोन्स प्रिपरेशन दे आर गिवन बाय दिस मेथड लाइक टेस्टोस्टेरोन। तो यू कैन आल्सो डिक्रीज द वेस्कुलरिटी, क्योंकि वेस्कुलरिटी क्या करता है, इंक्रीज द वेस्कुलरिटी विल इंक्रीज द एब्सॉर्प्शन, डिक्रीज द वेस्कुलरिटी सो एब्सॉर्प्शन विल बी सस्टेन। तो कैसे करेंगे आप, है ना। सो लिग्नोकेन क्या है, इट इज द लोकल एनेस्थेटिक, तो इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। बट व्हेन एड्रेनालिन इज गिवन विद द लिग्नोकेन, तो एड्रेनालिन क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है, so it will constrict the blood vessel and blood flow will be decreased, so lignocaine will act for a longer time. Then you can enhance the duration of action by combining with the protein, ना, जिससे प्रोटामाइन एंड जिंक एंड इंसुलिन। अभी जिंक इंसुलिन क्या है, इंसुलिन ये एक्टिव ड्रग है, ठीक है। इंसुलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाना है, तो क्या करना है, इंसुलिन का मिक्सचर बनाया प्रोटामाइन क्या है, इट इज अ प्रोटीन जिंक इंसुलिन, ये लॉन्गर टाइम को एक्ट होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन विल बी इंक्रीज्ड। केमिकल अल्टरेशन, यू कैन स्टिफाई द ड्रग, यू कैन कन्वर्ट इनटू प्रोड्रग्स। तो डर्मली अगर ड्रग देते इंटरनल, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे एनहांस करना है, यू कैन एनहांस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन गिवन बाय डर्मली, तो ट्रांसडर्मल एडहेसिव पैचेस एंड ऑइंटमेंट्स, ये ड्रग जो है देते हैं ट्रांसडर्मल, स्कोपोलामाइन, टेस्टेस्टेरोन, नाइट्रोग्लिसरीन, ना। यू कैन आल्सो अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इफ यू वांट टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज करना है, आपका ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन को बाइंड होता है ना, नहीं होता है, तो ऑब्वियसली क्या करना है, उसमें मॉडिफाई करके, तो
पोलर ग्रुप ऐड कर दो सो दैट ड्रग कैन बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। अगर प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड करता है इट विल शो द एक्शन फॉर लॉन्गर टाइम, है ना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है सल्फोनामाइड लाइक बोथ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जीपैट के लिए। यू कैन ऑल्सो डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म बाय यूजिंग microsomal inhibitor drug concurrently. You can also decrease the excretion to enhance the effect. Okay. Now next part is okay. So if you are ready, I can take for half an hour also. है ना, तो कर लेते हैं ड्रग डिस्कवरी। अभी ये कर लेते हैं पूरा, उसके बाद में कर देंगे। तो ड्रग डिस्कवरी, तो ड्रग डिस्कवरी मतलब एक नया ड्रग डिस्कवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है। So it takes around 15 to 20 years. Takes around 15 to 20 years for a discovery of new drug. It will take around 20 years to discover a new drug. 15 to 20 years. Now, जो पुराने ज़माने में ड्रग कैसे डिस्कवर हुआ करता था, तो in the ancient time, so drug were discovered by accidentally. So suppose जैसे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे आर कमिंग फ्रॉम हर्बल ओरिजिन, जैसे प्लांट से आता है, जैसे सिंकोना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बुखार आ गया तो वहाँ पे एक ऋषि था, सेज था, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक सिंकोना का प्लांट था, वो तालाब के किनारे, तो वहाँ पे सिंकोना के पत्ते गिरते थे, अगर बुखार आया तो उसका पानी पिला दिया, उसको पानी पिला दिया तो बुखार गया, क्योंकि उसमें सिंकोना का एक्सट्रैक्ट था। So that's how drug discovered one by one. Okay, drug discovery takes around 15 to 20 years. A lot of millions of dollars they are required. उसमें नहीं जाना है डिटेल में, आपको डिटेल में नहीं जाना है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ ड्रग डिस्कवरी। उसके बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स आता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नाउ ड्रग कैन बी डिस्कवर्ड बाय डिफरेंट वे। फर्स्ट इज द रैंडम स्क्रीनिंग और हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। रैंडम स्क्रीनिंग और हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, है ना। आपको क्या कहा है, ड्रग synthesize करना है, and you have to check the biological activity. Checking the biological activity of large number of chemical structures, random screening और high throughput screening. Second आता है compound oriented screening और molecular modification। तो आपको ऑलरेडी एक ड्रग है, जैसे डाइजिपाम में, आपका डाइजिपाम में तो एक स्ट्रक्चर है नॉन एज अ लीड स्ट्रक्चर, तो यू जस्ट मॉडिफाई, ऐड सम ग्रुप, रिमूव सम ग्रुप्स टू अल्टर द kinetics, to alter the, right? So that's how you can develop a new drug. So compound oriented screening or molecular modification of existing drug. Let's say for example, modification of acetazolamide to give another diuretics, modification of acetazolamide to give thiazide diuretics. Third आता है target oriented approach. So target oriented approach, so you can take a one target. जैसे for example, anti-inflammatory drugs कैसे act होते हैं, anti-inflammatory drugs कॉक्स को इनहिबिट करते हैं। कॉक्स क्या होता है, साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम। तो आपको मालूम है कि कॉक्स पाथवे इज इन्वॉल्व इन द इंफॉर्मेशन, so you can target only COX, known as a target oriented approach. So molecular targets are identified and drugs are developed. For example, ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers, they are developed. You can stop the renin, angiotensin aldosterone system. Yeah. Target oriented approach. Next होता है rational drug design. Rational drug design. So by studying the biological mechanisms and receptor structure, drug are developed. For example, proton pump inhibitor, COX2 inhibitors, they are developed. Next, all above approach will give you lead molecule, है ना। ये सभी अभी आपने सभी अप्रोच आपको फॉलो किए आपने, that will give you lead molecule and process of lead molecule मिल गया आपको, and process called as lead finding. So all these are known as a lead finding process. And this new drug is developed by lead optimization process. अभी ये जो चार प्रोसेस है, कौन से, रैंडम स्क्रीनिंग, कंपाउंड ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच एंड रैशनल ड्रग डिजाइन. So by these four processes you will identify the lead molecule, you will identify the lead molecule or lead structure. All these process, by this process we will get a lead molecule, okay, or lead compound, and then that's why these processes are known as a lead finding. These all processes are known as a lead finding, and from this lead ये ऐसे डाइजिपाम, जैसे एक किस्सा था, हमारे सर ने हमको बोला था फॉर एग्जांपल कि डाइजिपाम या फिर हमारे सर ने बोला था कि यार बार्बिचुरेट जो थे, बार्बिचुरेट्स जैसे फिनोबार्बिटॉन
है ना, बाकी मेरे को बहुत बड़ा लेफ्ट. सो ऑल दिस बारबिटूरिक एसिड डेरिवेटिव हाउ दे हैव इन्वेंटेड. बारबिटूरिक एसिड कैसे इन्वेंट हो गया है ना, तो कैसे हो गया है, तो है ना, सर बोले हमारे हमारे सर बोले फॉरेन में कैसा होता है, फॉरेन में सब आइसोलेटेड फैमिली होता है, मतलब सिर्फ मियाँ बीवी और उसका बच्चा, बस उतनी ही फैमिली, ठीक है, और उनके साथ में एक कुत्ता रहता है, बस उतना फैमिली फॉरेन में फेमस है. अपने यहाँ पे कैसे 15-20 जन एक साथ रहते हैं, उसको फैमिली बोलते हैं अपन, है ना. तो उधर उधर क्या होता है कि फॉरेन में सिर्फ हस्बैंड वाइफ एंड उनका चिल्ड्रंस जो भी है, एक या दो, ठीक है, और उनके साथ में एक कुत्ता. तो हस्बैंड गया जॉब को, वाइफ भी गई जॉब को, या फिर वाइफ गई बाहर, बच्चा है घर में, बच्चे को दे दिया, पकड़ दिया एप्पल, तो बच्चे को बोला ये एप्पल ले ले, बैठ और खेल और खा. अभी उसके साथ में कुत्ता खेलने के लिए है, आदमी तो है नहीं वहां पे. तो क्या हुआ कि बच्चा थोड़ा एप्पल खाता है, नीचे रख देता है, बच्चा है उसका क्या मालूम, थोड़ा एप्पल खा लिया, रख दिया नीचे. उसमें कुत्ता ने क्या कर दिया, कार्यक्रम कर दिया. कुत्ता आया, उसके ऊपर तीर्थ डाल दिया उसने, मतलब यूरिन कर दिया उसके ऊपर, वो एप्पल के ऊपर यूरिन कर दिया. किसने, कुत्ते ने, है ना, कुत्ते ने यूरिन कर दिया एप्पल के ऊपर. अभी वो बच्चा है, उसको क्या मालूम कुत्ते ने यूरिन किया है, ये नहीं खाना चाहिए, वो अभी छोटा है, उसको क्या मालूम, उसने ले लिया, खा लिया, और वो गया सो गया. वो पेरेंट्स आने के बाद में वो लेके गए उसको, पेरेंट्स, है ना. सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, so that child was eating apple dropped on a floor, so that doggy came, he has done urine on that. Now that children has taken that apple and he has eaten again, and now he is sleeping, है ना. तो उसके मम्मी पापा आ गए, वो डॉक्टर के पास लेके गए, यार भाई हमारा बच्चा खेल रहा था, एप्पल खा रहा था, ये सो क्यों गया, क्यों सो गया, मालूम ही नहीं. डॉक्टर ने रिसर्च किया कि हुआ क्या, डॉक्टर ने रिसर्च किया कि हुआ क्या, उसका ब्लड सैंपल लेके, तो उसने पाया कि इसके ब्लड में एक कंपाउंड बना है, कौन सा, इसको बोलते हैं बारबिटूरिक एसिड. ये कैसे बना, बिकॉज बारबिटूरिक एसिड इज नथिंग बट द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ यूरिया एंड मेलानिक एसिड. और इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसके हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो क्या हुआ, एप्पल में होता है मेलानिक एसिड, एप्पल हैज अ मेलानिक एसिड, एप्पल हैज अ मेलानिक एसिड, एंड यूरिन ऑफ दैट डॉग की यूरिन में क्या आता है, यूरिया, डॉग की यूरिन में क्या होता है, यूरिया, एंड एप्पल में क्या होता है, मेलानिक एसिड, एंड बारबिटूरिक एसिड इज अ कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ मेलानिक एसिड एंड यूरिया. यूरिया और मेलानिक एसिड का रिएक्शन हो गया, वहां पे बारबिटूरिक एसिड बना, एंड इट इज अ सीरियस डिप्रेशन, इट विल इंड्यूस अ स्लीप, दैट्स हाउ दैट चाइल्ड गॉट अ स्लीप, एंड वैसे ही उसका डिस्कवरी हो चुका है, ठीक है ना. Now preclinical studies, what do you mean by preclinical studies? So preclinical studies, so it is this study is done to know the pharmacology, like kinetics, dynamics and toxicology, therapeutic index. तो preclinical study क्या है कि मान लीजिए आपने ये सब करके एक ड्रग, एक मॉलिक्यूल फाइंड आउट किया, एक मॉलिक्यूल बनाया, एक ड्रग बनाया, लेकिन उसको टेस्ट करना पड़ेगा ना, you have find out this drug and you have to test, है ना. तो टेस्ट किसके ऊपर करेंगे, आदमी के ऊपर, आदमी को मार देंगे आप, तो आदमी का नहीं करना. So what happens? So if you invent a new drug, if you develop a new drug, if you design a new drug, so you have to test that drug for pharmacological activity in the animals. So it is, so animal study is known as the preclinical studies. So checking the pharmacology of a newly synthesized, a newly developed, a newly find out drug in the animals known as the preclinical studies. So in the animals there are two type of animals that can be used for the study. दो टाइप के एनिमल होते हैं, राइट. तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको, इसमें kinetics of drugs, dynamics and toxicology of drugs, therapeutic index of drug, that is found out in the preclinical study. So testing of drug on animals, दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक होते हैं स्मॉल एनिमल, there are two type of animal that you can utilize for the preclinical studies, that is a small animals, like for example mice, rat, guinea pigs, guinea pigs, mice, rat, ये इनको बोले अपन छोटे एनिमल. Now large animals like cat, dogs, monkey, etc., horse, cat, dog, monkey, horse, they are known as large animal. So testing of drug in these animals to know the kinetics, dynamics, toxicology and then therapeutic index. Okay, so once your drug is giving a promising result, आपके ड्रग ने क्या किया, अच्छे रिजल्ट दिए, किसमें, एनिमल्स में. So if your drug is giving promising result in the animal studies,
then now you can apply for the respective agency of country for the clinical trials. उसके बाद में आता है clinical trials. So in the preclinical trials, if results are good, if results are satisfactory regarding the safety and efficacy, in the preclinical trials, if your drug performs well, if it is giving safety and efficacy, then you have to apply for IND. IND मतलब क्या होता है? Investigational new drug for the say for example अगर आप US में हो तो US FDA को अप्लाई करना पड़ता है, इंडिया में हो तो CDSCO को अप्लाई करना है. इंडिया मतलब इंडिया में सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO, सेंट्रल रिसर्च कंट्रोल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO. US FDA मतलब US FDA मतलब US फूड ड्रग एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ इफ यू आर इन US, आप US में स्टडी कर रहे हो आप, तो आपको IND फाइल करना पड़ेगा US FDA में. You have to take a permission from US FDA to test your drug in humans. Now permission is granted in this, okay, testing of humans. Now, if US FDA grant the permission to test your drug in humans, it is known as the clinical trials. Now you can perform the clinical trials, and before performing the clinical trials you have to design the study, and you have to conduct trials according to the ICH, GCOPA, ICH good clinical practices, guidelines, and then ethical clearance is required. Ethical clearance मतलब क्या कि जो एनिमल तो ठीक है, एनिमल मार दिया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ ड्रग यूज करके कुत्ते मर गए तो कौन क्या पूछने, लेकिन ड्रग यूज करके अगर आदमी मर रहे तो पूछेंगे ना, आपको जेल में डाल देंगे. ठीक है, so that's why you have to take a ethical clearance from the ethical committee, right? So that we are going to conduct a clinical trials for this, and we are involving this number of subjects, and if anything goes wrong, so we are not responsible. That's why you have to take a ethical clearance from committee. Okay? Now clinical trials are conducted in a different phases: phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, and phase 0. Okay? So clinical trials, they are conducted in a different phases, like phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase and phase 0. Now, phase 5 is known as phase 0. Right? Now, before conducting a clinical trial, so you have to obtain a consent form. Consent form क्या होता है? Consent form मतलब आप जो भी आप ये ले रहे हो ना, okay? Before performing a clinical trial, so you have to obtain a consent form. Consent form है ना, consent form किससे? So whatever subjects you are including in the clinical trials, आप clinical trials के लिए जो आदमी ले रहे हो, जो सब्जेक्ट ले रहे हो, उनका consent form आपको लेना है. You have to obtain a consent form from these patients. कि in case आप आ रहे हो clinical trials में, यार कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं, लो आप मर गए तो हम जिम्मेदार नहीं, ऐसे थोड़ी होता है भाई. तो consent form you have to obtain from the that organization, ethical committee. So a consent form is obtained from the patient subject only. Now clinical trials are performed in a different phases. यहाँ पे different phases से clinical trial के, है ना. ये slide के नीचे और 2 रो है, लेकिन वो 2 रो important नहीं है, इसलिए वो hide किए, है ना. So in this slide you have this first row, second row, third row, fourth row, और 2 रो है 6 and 7, but that is not important. That's why I have hided them. कहीं की जरूरत नहीं, वो सब useless है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज गोइंग ऑन. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. ये सब इंपॉर्टेंट है. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ, है ना. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू. इज दैट फाइन? साउंड आ रहा है आपको? एम आई ऑडिबल टू यू? Are you getting my voice properly? Write yes in the comment box
यू आर गेटिंग माई वॉइस? यस लिखिए कमेंट बॉक्स में आपको साउंड आ रहा है तो, बिकॉज दिस पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. डिफरेंट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल. बिलीव मी, इसके ऊपर कम से कम 10-12 बार क्वेश्चन आ चुका है. 10 से लेके 12 बार क्वेश्चन आ चुका है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Am I audible to you? Different phases of clinical trials. Very very important part. Different phases of clinical trials. Clinical trials मतलब क्या होता है? You have to test your drug in a humans. So clinical trials are performed in a different phases. So phase 1, phase 2, है ना? Phase 2, phase 3, phase 4 and phase 0. Phase 0. Right? So in the phases, whatever you are doing, very very important. फेज फर्स्ट क्या है, उसका सिम्टम क्या है, उसमें क्या होता है, कितने पेशेंट है ना, उसका पर्पस क्या है. ओके, सो लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम दिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो जीपैट 18, 20, 21, 22 पहले भी गेट में क्वेश्चन दिया है, तो देखो यहाँ पे लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, है ना. बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें से. विल सी वन बाय वन, है ना. विल सी वन बाय वन. नाउ व्हाट इज फेज 1? फेज 1 क्या होता है? फेज 1, so first time you are using your drug in a humans. So first time you are using your experimental drug in a humans, right? So first time you are using your experimental drug. कौन सा drug है भाई? Experimental. First time you are using experimental drug. Experiment करो ना आप. Experimental drug in a human. So what are the number of subjects in the phase 1 clinical trial? तो यहाँ पे number of subject कितने होने चाहिए? 10 to लेके 100, है ना. 10 to 100 number of subjects are taken for the phase first trials, है ना. नाउ ये जो 10 to 100 जो आपके सब्जेक्ट है वो कैसे होने चाहिए? तो 10 to 100 सब्जेक्ट्स इन फेज 1 एंड दैट सब्जेक्ट शुड बी ए हेल्दी वॉलंटियर्स. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. सब्जेक्ट शुड बी हेल्दी वॉलंटियर्स. ये सब हेल्दी होने चाहिए. नो एक्सट्रीम एज. नो एक्सट्रीम एज. एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? नो एक्सट्रीम एज मतलब क्या है? एक्सट्रीम मतलब क्या? अगर बच्चा है ना, जवान है और बूढ़ा है, ये तीन है. तो कुछ बच्चे हैं, कुछ जवान है, कुछ बूढ़े हैं. दैट इज नोन एज एक्सट्रीम एजेस, राइट. नाउ होमोलोगस क्या होता है? होमोलोगस मतलब सिर्फ बच्चे हैं, या फिर सिर्फ जवान है, या फिर सिर्फ बूढ़े हैं, राइट. तो एक्सट्रीम पॉपुलेशन शुड नॉट बी देयर. तो हेल्दी वॉलंटियर्स, नो एक्सट्रीम. नाउ नॉर्मली यूजुअली हेल्दी वॉलंटियर्स होने चाहिए, बट ऑकेजनली यू कैन इंक्लूड पेशेंट विद एडवांस डिसीज. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं? हेल्दी वॉलंटियर्स, बट कभी कभी यू कैन ऑल्सो इंक्लूड द पेशेंट विद द एडवांस डिसीज, फॉर एग्जाम्पल लाइक कैंसर. टाइप ऑफ स्टडी क्या होता है? ओपन लेवल. ये ओपन लेवल क्या होता है? रैंडमाइज्ड क्या होता है? ये छोड़ दो, उसको डजेंट मैटर, ये रो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है. नाउ व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर्पज क्या है? The purpose of phase 1 clinical trial is the safety and tolerability. To know the safety of drug, to know the tolerability of drug. आपका ड्रग सेफ है, ह्यूमंस में नहीं है, ये आपको फेज 1 में ही पता चलेगा. सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इज द मेन एम ऑफ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स. टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज. क्या काम है? व्हाट इज द पर्पज? टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज. तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, है ना. ये ही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है. ये फेज 1 को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं और कैसे पार्टिसिपेंट हैं. देन उसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस. तो ये जो 3 रो है आपकी, ये 3 रो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये 3 रो ही आपके ना, ये रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, देन फोर्थ रो. दीज रो आर इंपॉर्टेंट. इसके नीचे 2 रो और है, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट, बट बुक्स में है वो. Now phase 1, if you got a good result in the phase 1, आपका ड्रग एक्सपेरिमेंटल ड्रग जो है, you have experimental drug. तो if your drug performs good in the phase 1, आपका ड्रग जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग है and it gives satisfactory results in the phase 1, then go for phase 2. तो आप phase 2 ट्रायल करेंगे. What is phase 2? तो first time you are using your drug in a patients. फर्स्ट टाइम यू आर यूजिंग योर ड्रग इन अ पेशेंट. सपोज आप जो ड्रग डेवलप किए वो डायबिटीज के लिए,
if you have developed a drug for diabetes, so first time you have to check for safety in the phase 1. Second phase में you have to check that drug for a diabetic patient whether that drug has a efficacy or not. आपके ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है या नहीं, वो सेकंड फेज में है. So phase second, you have to analyze, you have to test that drug on a patient, right? So now number of subject कितने important है? Number of subject in the phase second 50 to 100, 50 to 500. So 50 to 500, 50 से लेके 500 तक participant होने चाहिए. 50 to 500 participants in the phase second. Okay. And now what type of patient? Patient receiving a experimental drug. Patients are receiving experimental drug. Now what type of study is done? Randomized and controlled. It can be placebo controlled or may be blinded. ये क्या है? छोड़, नहीं समझ में आया, भूल जाओ, जरूरत नहीं है. Next, what is the purpose of phase second? Very important. So to know the efficacy and dose ranging establishment. To know the efficacy. Efficacy मतलब क्या होता है? Pharmacological activity. To know the efficacy of drug. So it is also known as therapeutic exploitation. Therapeutic exploitation मतलब क्या है? To know the therapeutic effect of drug. So efficacy and therapeutic exploitation. ये phase second. Now if your drug यहाँ पे भी क्या है? आपका drug क्या है? आपका experimental drug. In this phase also your drug is a experimental. Your drug is under experiment. So your experimental drug performs well in the phase second. फेज सेकंड में भी रिजल्ट अच्छा आ गए आपको कि आपके इसको एक्टिव है, शुगर लोअरिंग एक्टिविटी है ना, तो आप फेज 3 में जाओ. तो कंडक्ट फेज 3 ट्रायल. कंडक्ट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल. फेज 3 ट्रायल इज नोन एज अ मल्टी साइट ट्रायल. फेज 3 ट्रायल इज नोन एज अ मल्टी साइट ट्रायल. इसके ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है. विच फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इज नोन एज अ मल्टी साइट ट्रायल? सो फेज 3 इज नोन एज अ मल्टी साइट ट्रायल. ठीक है. तो फेज 1 में क्या किया आपने? दोस्तों को कोरोना वैक्सीन के टाइम से रिलेट करो इसको. यू कैन रिलेट दिस थिंग्स विद कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले कोरोना वायरस का वैक्सीन का ट्रायल किया था दिल्ली में. सॉरी, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया था पुणे में. कि पुणे में क्या है? वायरस स्टडी के लिए सेंटर है. ठीक है. तो पुणे में क्या? तो पुणे में लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट के ऊपर किया था, जैसे 10 to 100. बाद में उसका सेकंड फेज भी पुणे में किया गया, अराउंड 50 to 500 पेशेंट. लेकिन फेज 3 में क्या? फेज 2 में आ गया उसका इफेक्ट. फेज 3 में क्या? मल्टी साइट ट्रायल. मतलब वो मुंबई में किया, हैदराबाद में एक ट्रायल किया, कुछ जगह दिल्ली में हो गया, कुछ जगह वेस्ट बंगाल में हो गया. सो मल्टी साइट ट्रायल. फेज 3 इज नोन एज अ मल्टी साइट ट्रायल. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन अ फेज 3? फेज 3 के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है सभी. ये ईच एंड एवरी सिंगल लाइन इज इंपॉर्टेंट ऑन दिस लाइन. A few hundred to thousand patient. A few hundred to thousand patient. मतलब क्या? Up to 500, up to 5,000. A few hundred to thousand of patient, up to 5,000. Or as it is ये line था, a few hundred to thousand of participants are present in the which phase of clinical trials? ऐसा क्वेश्चन था, and that is nothing but the phase 3. ठीक है. यहाँ पे लिखा भी है GPAT 2019 में ये क्वेश्चन आया. तो few hundred जैसे 500 यहाँ पे, तो यहाँ पे 600 to 5,000 पेशेंट ऐसा भी लिख सकते हैं. 600 to 5,000 पेशेंट. तो इफ यू 100 to 1,000 पेशेंट्स आर इंक्लूडेड इन द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना. नाउ व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स दे आर इंक्लूडेड इन द फेज 3? कौन से टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे? पेशेंट रिसीविंग द एक्सपेरिमेंटल ड्रग. पेशेंट और सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्सपेरिमेंटल ड्रग. तो पेशेंट इंक्लूडिंग एक्सट्रीम एज, मतलब यहाँ पे बच्चे भी होंगे, चिल्ड्रंस प्लस यंग पीपल हैविंग डिसीज प्लस ओल्ड पीपल हैविंग डिसीज. तो एक्सट्रीम एज, चिल्ड्रंस प्लस यंग पीपल प्लस ओल्ड पीपल, राइट. सो एक्सट्रीम एज पेशेंट इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक एंड जेडियाट्रिक पेशेंट. पीडियाट्रिक मतलब छोटे बच्चे, जेडियाट्रिक मतलब बूढ़े. पेशेंट एंड सब्जेक्ट हैविंग रिसीविंग एक्सपेरिमेंटल. यहाँ तक आपका ड्रग क्या है भाई? एक्सपेरिमेंटल ड्रग है. यहाँ पे भी क्या है? ड्रग आपका अंडर एक्सपेरिमेंट है. तो इट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल. ये आपको मैं ये क्यों लिख रहा हूँ आपको बाद में पता चलेगा. तो टाइप ऑफ स्टडी
टाइप ऑफ स्टडी में रैंडमाइज्ड कंट्रोल ब्लाइंड है ना, रैंडमाइज स्टडी होता है, रैंडमाइज कंट्रोल, या फिर यहाँ पे प्लेसिबो कंट्रोल में भी ब्लाइंडेड। ये क्या होता है ये छोड़ दो आप, ये मत सोचो। देन व्हाट इज द पर्पज, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस स्टडी? टू कंफर्म द थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस known as a therapeutic confirmation, to confirm the efficacy in a larger population and also known as a therapeutic confirmation। ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो चुका है। नाउ फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये 3 फेज में क्या है, आपका ड्रग क्या है, एक्सपेरिमेंटल ड्रग, योर ड्रग इज अंडर एक्सपेरिमेंट। नाउ वंस योर ड्रग पासेज द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, आपके ड्रग ने फेज 3 में भी क्या किया, अच्छे रिजल्ट दिए। आपके ड्रग ने फेज 3 में क्या किया, अच्छे रिजल्ट दिए। फेज 3, फेज 1 क्या है, टू नो द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, टू नो द मैक्सिमम सेफ डोज, ठीक है, टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। फेज 2 क्या है, टू नो द एफिकेसी, आपके ड्रग को फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है या नहीं, एंड डोज रेंजिंग में एस्टेब्लिशमेंट, कितने डोज तक इफेक्ट देता है ना। सो दैट इज एफिकेसी एंड डोज रेंजिंग एस्टेब्लिशमेंट नोन एज अ थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन। फेज 3 में क्या है, तो यू आर चेकिंग द एफिकेसी इन अ लार्जर पॉपुलेशन, है ना, to confirm the efficacy in the larger population, to therapeutic confirmation। phase 2 is known as therapeutic exploration, phase 3 is known as therapeutic confirmation। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंफर्म हो चुका है कि आपके ड्रग का इफेक्टिव है, आपका ड्रग यूजफुल है। शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट भी यहाँ पे अपने शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट भी आपने यहाँ पे नोट डाउन किए। तो शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फेज 3। फेज 3 में ही आपको शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट का भी डाटा कलेक्ट करना है। नाउ वंस फेज 3 इज पास, फेज 3 पास हो गया मतलब आपका ड्रग है यार, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, योर ड्रग इज अप्रूव्ड। नाउ फेज 4, फेज 3 हो गया आपका, रिजल्ट आए तो आपका ड्रग अप्रूव हो जाएगा। तो आफ्टर फेज 3 रिजल्ट योर ड्रग विल बी अप्रूव्ड टू यूज इन द लार्जर इन द मार्केट। तो फेज 4 आएगा। व्हाट इज फेज 4? फेज 4 इज नथिंग मतलब पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। इसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार। Post marketing surveillance, phase 4 is a post marketing surveillance। now in this case many thousands patients, है ना, एक बार ड्रग अप्रूव हो गया तो आपको क्या मालूम कितने लोगों ने यूज किया है ना, करोड़ों लोगों ने यूज कर सकते हैं या फिर लाखों लोग यूज कर सकते हैं या फिर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज करेंगे। तो आफ्टर द phase 3 your drug is approved and thousands of patients they are using, so post marketing surveillance, many thousands of patients are included in this study। in this study this was a question in 21 also, ये क्वेश्चन आ चुका है 21 में, very very important। okay, right, so in this case what is, patient are receiving the treatment with the approved drug। यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ approved drug। तो up to phase 3 your drug was a experimental drug। फेज 1 में क्या था, आपका ड्रग एक्सपेरिमेंटल ड्रग था। फेज 2 में क्या था, एक्सपेरिमेंटल ड्रग। फेज 3 तक क्या था आपका ड्रग, एक्सपेरिमेंटल। बट फेज 4 में क्या है, फेज 4 में आपका ड्रग क्या हो गया, अप्रूव हो गया, अप्रूव, राइट। सो ऐसा क्वेश्चन आता है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल देयर इज यूज ऑफ अप्रूव ड्रग। अप्रूव ड्रग कब हुआ, फेज 4 में। सो फेज 4 क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। कितने पेशेंट के ऊपर स्टडी कर रहे हो आप, many thousands up to lakhs, so depending upon the disease, number of disease patient receiving the approved drug। and यहाँ पे ओपन लेबल स्टडी होता है। ये स्टडी क्या होता है डजंट मैटर, आप छोड़ दो उसको। पर्पस क्या है, पर्पस इंपॉर्टेंट है। so what is the purpose of phase 4? to know the adverse drug reaction। adverse effect क्या है, adverse drug reaction, compliance of drug compliance, patient compliance, then drug interaction। so purpose is very important, to know the adverse effect, to know the patient compliance, to know the drug interaction, है ना, long term adverse effect, very in this case your drug is approved। ठीक है, now कुछ most of the books have given phase 4, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, but some books also has given phase 0। कुछ books में phase 0 भी है। now what is phase 0? phase 0 is nothing but it is known as the microdosing studies। microdosing studies question इसके ऊपर आ चुका है। phase 0 is the microdosing studies। in this case also healthy volunteers are used, healthy people are used। what is the purpose of, है ना, माइक्रोडोसिंग। इसका नाम क्या है, माइक्रोडोसिंग स्टडीज। माइक्रोडोसिंग मतलब इसमें डोज कितना होगा, 1/100th ऑफ ह्यूमन डोज।
आपका ह्यूमन का थेरेपेटिक डोज कितना है उसका 1/100 डोज है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। जैसे मान लीजिए आपका आपका डोज है जैसे 100 mg है ना, तो 100 100/1 माइक्रोग्राम डोज है। आपका डोज है मान लीजिए 1 ग्राम का डोज है, तो 100 माइक्रोग्राम डोज इसमें यूज करेंगे 100th ऑफ डोज। नाउ व्हाट इज द पर्पज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। टू नो द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग्स, टू नो द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग। तो ड्रग का काइनेटिक्स क्या है, एब्सॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ये सब कैसे होता है, ये इसका स्टडी करने के लिए फेज 0 होता है, फेज 0, ठीक है, फेज 0। कुछ लोग इसको फेज 5 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फेज 5, कुछ लोग मतलब मैं बाकी क्लासेस वाले की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग मतलब कुछ ऑथर्स, few authors will also call phase 0 as a phase 5. Some authors will call phase 0 as a phase 5. कुछ authors phase 5 भी बोलते हैं, but most of the authors can call as a phase 0. तो purpose of phase 0, तो देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दे कैन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज 2 और हाउ मेनी सब्जेक्ट आर इन अ फेज 3, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस इज अ व्हिच फेज, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सो दे यूज टू आस्क क्वेश्चन लाइक मैच द फॉलोइंग, सो मैच द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल विद देयर पर्पस, है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 एक कॉलम में देंगे, दूसरे कॉलम में देंगे पर्पस, so you have to find out the correct match, right? So otherwise they will ask you, है ना, match the following phase of clinical trials with their respective number of participants, ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और इतना अच्छे से आपको किसी ने बोला नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, एंड यू हैव टू क्लियर दिस, ओके। Now remaining part we'll see tomorrow, remaining part we'll see tomorrow, remaining part we'll see tomorrow. I hope you have understood, I hope everybody has understood this.